وزیر اعظم عمران خان کل حکومت کی 3 سالہ کارکردگی قوم کے سامنے رکھیں گے۔ تاریخ خطاب کے لیے انتظامات مکمل۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ اور ملک کے دیگر شہروں میں بڑی اسکرینیں نصب۔ ملک بھر میں عوامی مقامات پر وزیر اعظم کا خطاب براہ راست دکھایا جائے گا۔ بچوں کو ہمیشہ اپنی زبان میں پڑھانا چاہیے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے لوگوں کو ایک کریکولم دیں گے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی آپ نے موو کی ہے۔ یکساں نصاب تعلیم سماجی تفریق کے خاتمے کے لیے ناگزیر۔ ماضی میں کسی نے تعلیم پر توجہ نہیں دی۔ انگریز دور کا طبقاتی تعلیمی نظام مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا۔ مینار پاکستان پر پیش آنے والے واقعے پر انتہائی تکلیف ہوئی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا لاہور میں کنونشن سے خطاب۔ اگر ہم نے اپنی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے ملک کو ہرا کرنا ہے۔ شیخ پورہ میں پاکستان کے سب سے بڑے رکھ جھوک سمارٹ جنگل کا افتتاح۔ 24,000 کنال پر محیط جنگل سمارٹ سینسرز اور نگرانی کے نظام سے لیس۔ راوی ریور پروجیکٹ کے تحت 3 بیراج بنائے جائیں گے۔ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر پاکستان چھوڑ کر جائیں گے وزیر اعظم عمران خان۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا GHQ کا دورہ۔ ملکی سلامتی کے لیے مسلح افواج کی بے مثال خدمات اور قربانیوں کی تعریف۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے قومی سلامتی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ GHQ آمد پر صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھی۔ افغان صورتحال پر علاقائی ملکوں کے ساتھ مل کر متفقہ لاحہ عمل کی کوششیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 4 ملکی دورے کے دوسرے مرحلے میں تاجکستان سے ازبکستان پہنچ گئے۔ ازبک صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں، تعاون کے فروغ اور افغان صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے میں قیام امن کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ افغانستان میں زندگی معمول پر آنے لگی۔ وادی پنجشیر کا تنازع حل کرنے کے لیے مذاکرات جاری۔ طالبان وفد مذاکرات کے لیے پنجشیر پہنچ گیا۔ پنجشیر کا مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کریں گے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد۔ حکومت سازی کی کوششیں جاری۔ محمد نبی عمری کو صوبہ خوست کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ PTV نیوز کی ٹیم لمحہ بلمحہ خبر دینے کے لیے کابل میں موجود۔ ہم افغانستان کابل شہر کے اندر ایک مشہور شاہراہ پہ موجود ہے۔ حسیب کا یہ کہنا ہے کہ جنگ اور حالات کی تنگی کے باعث اس کو یہاں پر جوتے سینے پڑ رہے ہیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ وہ بھی پڑھنا چاہتا ہے لیکن حالات اور جنگ کے باعث اس کو تقدیر نے مجبور کر دیا ہے۔ امریکہ اور اتحادی 31 اگست کی ریڈ لائن پر انخلاء مکمل کریں افغان طالبان۔ امریکہ نے انخلاء کا عمل تیز کر دیا۔ انخلاء کے معاملے پر G7 اختلافات کا شکار۔ امریکہ سے انخلاء 31 اگست کے بعد بھی جاری رکھنے کا مطالبہ۔ فرانس نے کل سے انخلاء روکنے کی دھمکی دے دی۔ جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے افغانستان کی امداد میں 500 ملین یورو کا اضافہ کر دیا۔ بھارت میں افغان مہاجرین کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بھارتی شہریت اور روزگار کا جھانسا دیا گیا۔ نئی دلی میں تیسرے دن بھی افغان مہاجرین کا احتجاج۔ اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے دھرنا دے دیا۔ 7 مختلف قوانین کو ختم کر کے میڈیا اتھارٹی بنا رہے ہیں۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام سے میڈیا ورکرز کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ میڈیا کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کریں گے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کی PTV نیوز کے پروگرام صبح پاکستان میں گفتگو۔
مودی کی فاشسٹ حکومت مقبوضہ کشمیر میں قتل عام کی پالیسی پر عمل پیرا، کشمیری پریشان ہیں، انہیں بندوق کی نوک پر خاموش کرایا جا رہا ہے، صدر PDP محبوبہ مفتی۔ بیرسٹر سلطان محمود نے آزاد کشمیر کے صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا، چیف جسٹس آزاد کشمیر نے حلف لیا۔ تقریب میں ارکان اسمبلی، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ملک میں کورونا کا 3.5 ماہ بعد بڑا وار مہلک وائرس 141 زندگیاں نگل گیا، 24 گھنٹے میں 4199 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 6.8% ہو گئی۔ چین کی ویکسین سائنو ویک اور سائنو فارم کی منظوری سعودی عرب کی جانب سے دے دی گئی۔ Second slip position and another first bowler just playing at the ویسٹ انڈیز کا پاکستان کے خلاف 21 سال بعد ٹیسٹ سیریز جیتنے کا خواب ادھورا، جمیکا ٹیسٹ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 109 رن سے شکست دے دی، سیریز 1-1 سے برابر۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 219 رنز بنا کر آؤٹ، شاہین شاہ آفریدی کی 10 وکٹیں میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ Fahim Pakistan 10 wickets in the match for that man Shaheen Shah Afridi, and they've squared the series. West Indies took the first test in a nail biter. اور ICC کی نئی ٹیسٹ رینکنگ، قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کے کیریئر کی بہترین رینکنگ، 10 درجے ترقی پا کر 8ویں نمبر پر آ گئے۔ فواد عالم بھی 34 درجہ بہتری کے ساتھ 21ویں نمبر پر۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم 8ویں سے 7ویں پوزیشن پر آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلیٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں ایاز اسلم، میں ہوں نازیہ کنول، اور سپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویکسین لگوائیں، زندگی بچائیں۔ پاکستان اس وقت کورونا کی چوتھی لہر کی لپیٹ میں ہے۔ ہر نئی لہر پچھلی سے زیادہ شدید ثابت ہو رہی ہے۔ بار بار کے لاک ڈاؤن، روز روز کی مالی مشکلات، یہ سلسلہ کب اور کیسے ختم ہوگا؟ ان سب سوالوں کا جواب ہے ویکسین۔ صرف ویکسین کے ذریعے ہم اس سلسلے کو ختم کر سکتے ہیں، زندگی کو معمول پر واپس لا سکتے ہیں۔ آج ہی رجسٹریشن کرائیں۔ اگر آپ کے علاقے میں موبائل ویکسینیشن وین آئے تو ان سے ویکسین لگوائیں یا قریبی ویکسینیشن سینٹر تشریف لائیں۔ ویکسین لگوائیں، زندگی بچائیں۔ 3 سالہ محنت اور لگن سے سر بلند ہو رہا ہے پاک وطن۔ کل کا نہیں، یہ ہے آج کا پاکستان۔ غریب نہیں، خوددار پاکستان۔ کرپشن زدہ نہیں، بدعنوانی سے پاک پاکستان۔ اقتصادی میدان اور بین الاقوامی محاذ پر باوقار پاکستان۔ ساری دنیا میں بنا کشمیر کا سفیر پاکستان۔ سرسبز و شاداب کلین گرین پاکستان۔ اب بے گھروں کو گھر ملے، تجاوزات کا رستہ بند ملے۔ امید سے ارادہ اور ارادے سے یقین، اب خوشحال ہو رہی ہے عوام،
और सच संवर रही है पाक सरजमीन। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी अवाम के सामने रखी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल इस्लामाबाद में मुनक्किदा खुसूसी तकरीब में अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी कौम के सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम को अपनी हुकूमत के 3 साला कारकर्दगी से आगाह करने के लिए मुल्क भर में अवामी मकामात पर वज़ीर आज़म का खिताब बराह रास्त नशर करने का भी इंतज़ाम किया है और फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म के तारीख़ी खिताब की बराह रास्त नशरियात के इंतज़ामात के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इंसाफ यूथ विंग के नौजवान कारकुनान पर मुश्तमिल टीमें कल मुल्क भर में बड़ी स्क्रीनों पर वज़ीर आज़म का खिताब अवाम को दिखाने के इंतज़ामात करेंगी। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित, मुल्तान और हैदराबाद में बड़ी स्क्रीनें नस्ब की जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी कायदीन, कारकुनान और अवाम के हमरा उन शहरों में तयशुदा मकामात पर वज़ीर आज़म का बराह रास्त खिताब सुन सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कौमी तरक्की के लिए इब्तदाई तालीम के शोबे को जदीद खुतूत पर उस्तवार करना इंतहाई ज़रूरी है। लाहौर में पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों में यकसा निसाब का निफास मौजूद है, जो हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म के खिताब की मज़ीद तफसील बता रहे हैं शाहिद वफा। गवर्नर हाउस लाहौर में पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत मसावात पर मबनी सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए कोशां है। एक कौम एक निसाब के मंशूर पर अमल दरामद का आगाज हो गया है, जिससे तालीम के मेयार में बेहतरी के साथ साथ तबकाती तकसीम के खात्मे में भी मदद मिलेगी। पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ी आपने मूव की है, जो आने वाले टाइम में आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी में। जब अंग्रेज़ का जो हमने निज़ाम इनहेरिट किया वो क्या था? वो थोड़े से लोगों को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन थी, हमें एक दूसरे कल्चर का ग़ुलाम बना दिया। बहुत ज़रूरी है कि हम साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत करें, उनको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आगाह करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नौजवानों को टेक्नोलॉजी से रोशनास करना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताहम माशरे में आला इखलाकी इक़दार को फ़रोग देने के लिए नई नस्ल को समाजी तरबियत और दीन की तालीम देना भी ज़रूरी है। बदकिस्मती से करप्शन नीचे तक पहुँच गई है। हम FBR के अंदर कोशिश कर रहे हैं। 3 साल से मुझे वो हर बारी 6 महीने और 6 महीने कहते रहते हैं कि FBR को ऑटोमेट करें। हमने आज से 20 साल पहले शौकत खानम के अंदर सब कुछ कंप्यूटराइज कर दिया। उसका नतीजा क्या? करप्शन हो ही नहीं सकती। हमने अब अपनी कैबिनेट में कर दिया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक तालीम के शोबे में जामे पॉलिसियाँ मुतारिफ करा दी हैं, जिससे सरकारी स्कूलों के मेयार में बेहतरी आएगी और महकमा तालीम में मेरिट को फ़रोग हासिल होगा। पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद रास ने कहा कि सूबे में तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन, नई इमारतों की तामीर, सपहर की क्लासों के इजरा और बच्चों को दोपहर के खाने की फराहमी के साथ साथ असातिज़ा को भी तरजीही बुनियादों पर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। पंजाब में गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान इब्तदाई तालीम के शोबे में जो इस्लाहात हुई हैं, उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में नौजवानों की तालीमी काबिलियत में बेहतरी के साथ साथ उनके एतमाद में भी इजाफा होगा। शाहिद वफा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़,
लाहौर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेखुपुरा में रखछोक जंगल का इफ्तिताह कर दिया है। मुल्क में अपनी तर्ज का ये पहला जंगल स्मार्ट सेंसर्स और निगरानी के निज़ाम से लैस होगा, जिसकी तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। शेखुपुरा में स्मार्ट जंगल के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अपनी आइंदा नस्लों को महफूज मुस्तकबिल और एक बेहतर पाकिस्तान फराहम करना हमारी तरजीह है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग और आलूदगी जैसे मसाइल पर काबू पाने के लिए चैलेंजेस के बावजूद पुरअज़्म हैं। अगर हमने अपनी नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम सारी कौम मिलके हम ये अहद कर लें कि हमने अपने मुल्क को हरा करना है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है पानी का, ये हमारा ही नहीं दुनिया में पानी का मसला आने वाला है। उसके लिए दरख्त उगाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो पाकिस्तान को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। ये जो स्मार्ट फॉरेस्ट है, ये फिर हम सारे पाकिस्तान में इसकी मिसाल देंगे। आप ये सोचें कि 2013 तक सारे पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 64 करोड़ दरख्त उगाए गए हैं, और सिर्फ पख्तूनख्वा में हमने 2013 से लेके 2018 तक 1 अरब दरख्त उगाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि रावी रिवर मंसूबा न सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि जदीद शहर बनने से रोजगार के मौके पैदा होंगे और माशी सरगर्मियां बढ़ेंगी। इसका सारा इम्पैक्ट पड़ेगा रोजगार के ऊपर, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री पे। कंस्ट्रक्शन जब शुरू होगी तो 30 और इंडस्ट्रियां चलनी शुरू हो जाएंगी, और इससे फिर हमारी इकॉनमी बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। पहली दफ़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन गया है, 10 लाख नौकरियां इससे मिलेंगी, और फिर हमने जो एस्टिमेट किया कि 40 अरब डॉलर इकॉनमी में आएगा इसकी वजह से, ये शहर बनने की वजह से। 40 अरब डॉलर का मतलब कि तकरीबन जितना पाकिस्तान का सालाना बजट है 22 करोड़ लोगों का, वो जनरेट करेगा ये शहर। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के पहले स्मार्ट जंगल का इफ्तिताह किया। हवावे कंपनी को रखझोक जंगल मंसूबे का स्मार्ट शराकतदार बनाने के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी किए गए। इससे पहले वज़ीर आज़म ने शेखुपुरा के रखझोक जंगल में पौधा लगाया। स्मार्ट जंगल के हवाले से वज़ीर आज़म को बताया गया कि मंसूबा 24,000 कनाल पर मुहित है, जिसमें 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि यह पाकिस्तान का पहला जंगल है जो स्मार्ट सेंसर्स और निगरानी के निजाम से लैस होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। किसानों की मुआवनत हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। लाहौर में किसान कार्ड की कारकर्दगी पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से ज़राई शोबे में बड़े पैमाने पर इस्लाहात ला रही है, जिनके मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि कलील मुद्दत में ही 3,75,000 से ज़्यादा किसान कार्ड का इजरा हो चुका है और ये तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। किसान कार्ड की बदौलत सब्सिडी की मद में किसानों ने अब तक 5,95,000 ट्रांजेक्शन्स की हैं और मजमूई तौर पर तकरीबन 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी से इस्तेफादा किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से लाहौर में मुलाकात की है। इस दौरान सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी और सख्त इक़दामात करने की हिदायत देते हुए कहा कि मुल्ज़िमान के खिलाफ फ़ौरी कार्रवाई करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस मौके पर वज़ीर आज़म को सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात, कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई, महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के वज़ीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान पार्टी उमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल ज़ुबैर नियाज़ी ने मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म को इदारे की कारकर्दगी और मज़ीद बेहतरी के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सलामती के लिए पाक फ़ौज की बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियों को सराहा है। ISPR के मुताबिक सदर ममलुकत ने GHQ का दौरा किया। GHQ आमद पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदर ममलुकत का इस्तकबाल किया। सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की।
दौरे के मौके पर सदर ममलकत और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें कौमी सलामती और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को फ़ौज की मवासलात और इंफॉर्मेशन ब्रांच की जानिब से साइबर सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफ किया गया। सदर ममलकत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में पाक फ़ौज की सलाहियतों, इस्तेदाद कार और स्टेक होल्डर्स के साथ रवाबित कार की भी तारीफ़ की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि इस्लाम में अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी ज़ोर दिया गया है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमात में बारहा ये वाज़ेह किया गया है कि तमाम इंसानों के हुकूक़ यकसां हैं। ऐवान सदर इस्लामाबाद में अक़लियती बिरादरी की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि सुलह हुदैबिया माशरती एतबार से मसालिहती अमल की आला तरीन मिसाल है। मुनाफरत और फ़िरका वाराना सोच को ख़त्म करके एक कौम बना जा सकता है। रियासत पाकिस्तान का एक ख्वाब है कि रियासत मदीना के उसूलों को अपनाए भी। जो माहिदे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो प्रिंसिपल्स के एतबार से बिल्कुल आया है। वो प्रिंसिपल्स क्या थे? अच्छा, वो सिर्फ अगर मसीहियों के साथ वो चार्टर हुआ तो इसका मतलब वो एक सिंबॉलिक कैफियत थी। जब अरबी और अजमी का जिक्र हुआ तो एक सिंबॉलिक कैफियत है कि इससे मिसाल के तौर पर तसव्वुर कर लो कि सबके साथ क्या करना है। लोग जहन में सुलह हुदैबिया को रखें ताकि आपस में ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन की कैफियत हो और कौम बनाई जाए। कौम बनती है अपनी मुनाफरतें ख़त्म करके, नस्ल की बुनियाद पर मुनाफरतें ख़त्म करती है, बरादरियों की बुनियाद पर मुनाफरत ख़त्म करती है। तो कायदे आज़म का जो पैगाम था यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, वो इन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा था। ये मैसेज जो है पाकिस्तान का पैगाम और इस्लाम का पैगाम, इस वक्त दुनिया को इस बात की ज़रूरत है। मजहबी उमूर के वज़ीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि जंग के बरक्स अमन और रवादारी मुक़द्दम है। पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल में बिगाड़ पूरे ख़ित्ते के अमन को मुतासर कर सकता है। अफ़ग़ानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इलाकाई सतह पर मुत्तफ़िक़ा लाहे-अमल की तश्कील के लिए शाह महमूद कुरैशी के 4 मुल्की दौरे की तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल। तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल और बदलती सूरत हाल में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्की दौरे के दौरान इलाकाई रहनुमाओं के साथ अहम मुलाकातें कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव के साथ मुलाकात में अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। उज़्बेक सदर ने मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि अफगानिस्तान में क़याम अमन से खित्ते में तिजारत, मईशत और रवाबित में बेहतरी के इम्कान पैदा होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने तवक्को जाहिर की कि अफगान क़यादत इज्तमाइयत के हामिल सियासी तस्वीर की जानिब बढ़ेगी ताकि खित्ते में मजबूत तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित की राह हमवार हो सके। उज़्बेक हम मनसब अब्दुल अजीज कामिलोव से मुलाकात के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन व अमान और अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान में क़याम अमन से खित्ते में तिजारत और इलाकाई रवाबित को फ़रोग़ मिलेगा और पूरा खित्ता यकसा तौर पर मुस्तफ़ीद होगा। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नई अफ़गान सूरत हाल के दौरान शाह महमूद कुरैशी का दौरा बरवक्त और इंतहाई अहम है। ताशकंद पहुँचने पर उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा फुरकत सिद्दीकोव ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। 4 मुल्की दौरे के आगाज में वज़ीर ख़ारजा ने उज़्बेकिस्तान पहुँचने से कबल ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में ताजिक सदर इमाम अली रहमान से सदारती महल में मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी ने ताजिक सदर से बातचीत में कहा कि अफगानिस्तान में अमन जहाँ पाकिस्तान और ताजिकिस्तान समेत पूरे खित्ते के लिए जरूरी है, वहीं अफगानिस्तान में इस्तेहकाम इक्तिसादी ताउन बढ़ाने और राब्तों के फरोग के लिए भी अहम है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया। इससे पहले ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन के साथ मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में इज्तमाइयत का हामी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का फ़ायदा पूरे खित्ते को होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अपने दौरे के दूसरे हिस्से में तुर्कमानिस्तान और ईरान भी जाएंगे। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अफ़गान तालिबान ने अमरीका और इत्तहादियों पर जोर दिया है कि वो अफ़गानिस्तान से इनखला 31 अगस्त तक मुकम्मल कर लें।
اور باصلاحیت افغانوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرنا بند کر دیں۔ انہوں نے کابل ہوائی اڈے پر لوگوں کے گھر جانے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کے لیے عام معافی ہے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق امن و امان کی صورتحال یقینی بنانے کے لیے کابل کی سڑکوں پر دن بھر طالبان کی گاڑیاں گشت کرتی دکھائی دی۔ مارکیٹیں، دکانیں، بازار، بینکس، اسکول، تعلیمی ادارے، تجارتی و کاروباری مراکز معمول کے مطابق کھلے رہے۔ تاجر و دکاندار پر امید ہیں کہ طالبان کے افغانستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی اور طالبان سازی کے لیے مشاورت کا سلسلہ ہو رہی ہے۔ ادھر واقعی پنجشیر کا حل کرنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ احمد مسعود کے قریبی ذرائع نے کہا ہے کہ طالبان کا ایک وقت مذاکرات کی غرض سے پنجشیر پہنچا ہے۔ پنجشیر میں طالبان مخالف دھڑے نے کہا ہے کہ با مقصد مذاکرات اور افغانستان میں ایسی حکومت کا قیام چاہتے ہیں جس میں سماجی انصاف کو یقینی بنایا جائے۔ دوسری جانب امریکہ نے کابل سے انخلاء کا عمل تیز کر دیا ہے۔ امریکہ نے مزید 19,000 لوگوں کو افغانستان سے نکال لیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ 14 اگست سے اب تک امریکہ نے 82,300 افراد کا انخلاء کیا ہے۔ جولائی سے اب تک کی کل تعداد 87,900 ہو چکی ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے افغانستان سے اپنے فوجیوں کے انخلاء کی تاریخ میں توسیع سے انکار کے بعد وہ ممکنہ طور پر جمعرات سے انخلاء کا عمل روک سکتا ہے۔ یورپی امور کے فرانسیسی وزیر نے خبردار کیا ہے کہ موجود ہیں کہ ان کا ملک انخلاء کی کارروائی روک سکتا ہے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان سے روسی شہریوں کے علاوہ بیلاروس، کرغستان انخلاء کا بھی منصوبہ بنا رہا ہے۔ وزارت دفاع کی جانب سے صحافیوں کو بتایا گیا ہے کہ اس منصوبے میں 4 فوجی طیارے استعمال کیے جائیں گے۔ جرمن چانسلر کہ افغانستان کی نئی صورتحال ایک تلخ حقیقت ہے، تاہم جرمنی سمیت مغربی دنیا کو اس حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ افغانستان کے موضوع پر جرمن پارلیمان سے خطاب میں مرکل نے کہا کہ افغانستان میں جو کچھ گزشتہ 20 برسوں میں حاصل کیا گیا ہے اس کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے افغانستان کے لیے جرمنی کی طرف سے انسانی بنیادوں پر مہیا کی جانے والی امداد میں 500 ملین یورو کے اضافے کا بھی اعلان کیا۔ دوسری جانب ایک اور یورپی ملک ہالینڈ میں افغان پناہ گزینوں کے خلاف مظاہرہ ہوا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق 250 کے لگ بھگ مظاہرین اس آرمی کیمپ کے باہر جمع ہوئے جہاں افغانستان سے آنے والے تقریباً 800 پناہ گزینوں کو ٹھہرایا جائے گا۔ مظاہرین نے قوم پرست گانے گائے، تشدد پر آمادہ کرنے والے بینرز لہرائے اور ٹائروں کو نذر آتش بھی کیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی مگر کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ ہالینڈ نے 800 پناہ گزینوں کو رکھنے کے انتظامات کیے ہیں اور پناہ گزینوں کی پہلی کھیپ نیدرلینڈ پہنچ چکی ہے۔ طالبان کی آمد کے بعد افغانستان کی دارالحکومت کابل میں زندگی معمول پر آنے لگی ہے۔ بازاروں میں خواتین بھی خریداری کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس حوالے سے بتا رہے ہیں کابل سے ہمارے نمائندے فہد جاوید۔ فہد، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت اور وہاں پر خواتین کا کتنا رش ہے؟ جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر خواتین کے کپڑوں کی بھی بہت زیادہ ورائٹی موجود ہے اور یہاں پر خریداری کا عمل بھی جاری ہے۔ لوگ جو خواتین جو ہیں وہ بازاروں کے اندر خرید رہی ہیں، مختلف قسم کے پرنٹس ہیں یہاں پر، یہ کپڑوں کی بہت، اور جو افغانستان میں خواتین کے کپڑے ہیں وہ بڑے ہی شوق اور خوبصورت رنگوں کے کپڑے ہیں۔ یہاں پر خریداری بھی ہو رہی ہے۔ ادھر زیادہ تر سلک کا جو کپڑا ہے وہ ادھر زیادہ استعمال ہوتا ہے اور شوق رنگ جو ہیں یہاں پر پسند کیے جاتے ہیں۔ حسیب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پر جو خواتین کی ایک قمیض بنتی ہے یا جس کو یہاں پر فارسی جو ہے یہ اخوانی پیران بولتے ہیں، اس پر 3 میٹر کپڑا لگتا ہے، اور جو مردوں کے لیے کرتا شلوار بنتا ہے اس پر 4 میٹر کپڑا لگتا ہے جو کہ 1500 سے 3000 کے درمیان آتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کاروبار جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ایک ایسے بچے کی کہانی بھی بتا رہی ہیں جو افغانستان میں عرصہ دراز سے جاری بدامنی اور خانہ جنگی کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ ہم افغانستان کابل شہر کے اندر ایک مشہور شاہراہ پہ موجود ہیں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر مکمل طور پر رواں دواں ہے۔ یہاں پر لوگ خریداری کر رہے ہیں، معمولات زندگی نارمل ہو چکے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک بچہ ہے جو مزار شریف سے آیا ہے، حسیب یہاں پر جو ہے وہ جوتیاں وغیرہ سیتے ہیں۔ حسیب سے بات کرتے ہیں کہ حسیب کیوں یہ کام کر رہا ہے اتنی چھوٹی عمر میں اور کن مشکلات کے باعث یہاں پر حسیب کو آنا پڑا ہے۔ حسیب از کجا اومدی؟ مزار شریفم. اینجا چرا این کار میکنی؟ چرا تدریس نمیکنی؟ اینجا که ما بریم قلم و سراخ بود قرضدار شدیم از مزار شریف هم جنگ بود ده نمیشه یک نزدیک 1 3 سال 2.5 ساله که ده میشه هستیم.
हसीब का ये कहना है कि जंग और हालात की तंगी के बायस उसको यहाँ पर जूते सीने पड़ रहे हैं अपने छोटे बहन भाइयों का पेट भरने के लिए, और वो एक दिन के अंदर 100 से 150 रुपये वो कमा लेता है, जिसके बायस वो अपने बहन भाइयों को कुछ रोज़ी रोटी दे देता है। उसके जो छोटा भाई है वो भी जूतों की पॉलिश करता है, वो भी पढ़ना चाहता है, लेकिन हालात और जंग के बायस उसको तकदीर ने मजबूर कर दिया है कि वो चौक पर रोड पर बैठकर लोगों के जूते सिए और जूते पॉलिश करे, जो कि एक दर्दनाक। अफगानिस्तान के बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, स्कूल चाहते हैं और एक आसान ज़िंदगी चाहते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ और काज़िक हम मनसब के दरमियान वीडियो कॉल राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सलामती, अफगानिस्तान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। दोनों मुल्कों के माबैन अफगानिस्तान में देर पा अमन सियासी तस्वीर पर इत्तेफाक किया गया है और दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका कारोबारी काउंसिल, मुश्तरका वर्किंग ग्रुप समेत दीगर तमाम इक़्तिसादी फोरम्स पर फ़ाल तौर पर काम करने पर भी इत्तेफाक किया है। काबुल में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान से ईरान के सफ़ीर बहादुर अमीन ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। अफगानिस्तान में क़याम के लिए हमसाया ममालिक का किरदार इंतहाई अहम है। पाक तुर्कम सरहद पर अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों को मुल्क आने दिया जा रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले मरीजों को भी सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि अफगान शहरियों को तुर्कम सरहद से वापस जाने दिया जा रहा है। दोनों ममालिक के माबैन तिजारती सरगर्मियाँ बहाल हैं और रोज़ाना 700 से ज़्यादा गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। पाक अफगान बॉर्डर चमन बाब दोस्ती कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफराद के लिए पैदल आमदोरफ्त और तजारत के लिए आज भी खुला रहा। बाब दोस्ती पर दिन ब दिन अफगान महाजरीन का दबाव बढ़ रहा है। पाक अफगान बॉर्डर चमन बाब दोस्ती पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान तजारती मकासद के लिए कंटेनर्स भी पाक अफगान सरहद से आर पार आ रहे हैं, जबकि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मरीजों को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जा रही है। बगल में छुरी मुंह में रामला। जी हाँ नाज़रीन, यह है भारत का वो असल चेहरा जो अफगान महाजरीन के खुलकर सामने आ चुका है। मोदी के भारत में जहां मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी, नस्ल कुशी और मजालिम का सामना है, वहाँ लुटे पुटे अफगान महाजरीन भी रुल गए। भारतीय एजेंटों और एजेंसियों के कारिंदों ने सादा लो अफगानियों को भारतीय शहरियत और रोज़गार का झांसा देकर सुहाने सपने दिखाए, मगर मोदी हुकूमत अफगान महाजरीन को बेयारो मददगार छोड़कर दुनिया भर में उनके नाम पर भीख मांगने निकल पड़ी है। भारतीय सफारतकार अफगान महाजरीन के नाम पर कशको लिए आलमी बरादरी से इमदाद मांगते फिर रहे हैं, ताहम भारत में अफगान महाजरीन का कोई भी पुरसाने हाल नहीं। यही वजह है कि भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आज तीसरे दिन अफगान महाजरीन का एहतजाज जारी रहा। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन के सामने धरना दिया हुआ है। उनका मुतालबा है कि उन्हें भारतीय शहरियत और बराबरी के हुकूक दिए जाएँ। इत्तलात के मुताबिक इन अफगानियों को वो शहरियत दी जाएगी जिन्होंने अफगानिस्तान में भारत और बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी की। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। 3 साल मेहनत और लगन से सर बुलंद हो रहा है पाक वतन। कल का नहीं, ये है आज का पाकिस्तान। गरीब नहीं, खुददार पाकिस्तान। करप्शन ज़्यादा नहीं, बदउनवानी से पाक पाकिस्तान। इक्तिसादी मैदान और बैनुल-अक़वामी महाज पर बावकार पाकिस्तान। सारी दुनिया में बना कश्मीर का सफीर पाकिस्तान। सरसब्ज़ व शादाब
क्लीन ग्रीन पाकिस्तान। अब बेघरों को घर मिले, तजावुजात का रास्ता बंद मिले, उम्मीद से इरादा और इरादे से यकीन। अब खुशहाल हो रही है अवाम और सच संवर रही है पाक सरजमीन। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी आवाम के सामने रखी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल इस्लामाबाद में मुनक्किदा खुसूसी तकरीब में अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी कौम के सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम को अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी से आगाह करने के लिए मुल्क भर में अवामी मकामात पर वज़ीर आज़म का खिताब बराह रास्त दिखाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म के तारीखी खिताब की बराह रास्त नशरियात के इंतजामात के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। इंसाफ यूथ विंग के नौजवान कारकुनान पर मुश्तमिल टीमें कल मुल्क भर में बड़ी स्क्रीनों पर वज़ीर आज़म का खिताब अवाम को दिखाने के इंतजामात करेंगी। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, गिलगित, मुल्तान और हैदराबाद में बड़ी स्क्रीनें नस्ब की जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकामी कायदीन, कारकुनान और अवाम के हमराह इन शहरों में तयशुदा मकामात पर वज़ीर आज़म का बराह रास्त खिताब सुन सकेंगे। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन और मुअस्सर पॉलिसियों की बदौलत 3 साल के दौरान विरसे में मिलने वाली तबाह हाल मईशत को न सिर्फ इस्तेहकाम की जानिब गामज़न किया है, बल्कि कोरोना वबा की मुश्किल सूरत हाल के बावजूद मईशत को तरक्की के रास्ते पर डालने में भी हुकूमत कामयाब रही है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। 2018 में जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान को माशी तौर पर भारी कर्जों की वजह से दिवालियापन का सामना था। करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर, दरामदात 56 अरब डॉलर, जबकि ज़र-ए-मुबादला ज़खायर 10 अरब डॉलर की कम तरीन सतह पर थे। इन हालात में डिफाल्ट से बचने के लिए दोस्त ममालिक से माली ताउन और IMF से तसीही कर्ज की सहूलत हासिल की गई। मुअस्सर इक़दामात की बदौलत 20 अरब डॉलर के करंट अकाउंट खसारे को सरप्लस में तब्दील किया गया। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी, अखराजात में कफ़ायतशारी और आमदन में इजाफे की पॉलिसी अपनाई गई। 2020 में जब दुनिया भर में सख्त लॉकडाउन किया गया तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क के दरमियाने और गरीब तबके की मुश्किलात के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन का नजरिया दिया। अगर हम शहर बंद कर देते हैं तो यहाँ तो आगे लोगों के हालात बुरे हैं, तो हम एक तरफ से बचाएंगे कोरोना से, दूसरी तरफ यहाँ तो भूख से मर जाएंगे लोग। हमारे गरीब लोगों को क्या बनेगा? तो लिहाजा हमें बड़ा सोच समझ के एक्शन लेना था। कोरोना वबा के दौरान माशी सरगर्मियां रवां रखने के लिए 1200 अरब का पैकेज दिया गया। एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को नकद इमदाद की फराहमी भी बढ़ाई गई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के इत्माद की वजह से तस्सीलात ज़र में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत कारोबार में आसानी की आलमी बैंक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान की पोजीशन में नुमायां बेहतरी आई है। We have been focusing immensely on improving our economy and all aspects of our activities related to the economy. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग हमारी पिछले 2 सालों में तकरीबन 40 पोजीशंस की इम्प्रूवमेंट है। हम बहुत काम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। मुल्क में पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाने
और आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए बड़े डैमों की तामीर के साथ तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए भी इक़दाम किए गए। तामीरात, ज़राअत और सनत को खुसूसी मराद दी गईं ताकि रोजगार और मुल्की बरामदात में खातरखा इजाफा हो सके। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल, छोटे कारोबार की तरक्की, टैक्स वसूली में इजाफे, पसमानदा और कम तरक्की याफ्ता इलाकों की तरक्की समेत बेरोजगारी और गुर्बत में कमी के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मज़ीद 2 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने और 4 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। इजलास में टिड्डी दल के खात्मे के लिए चीन से 12 डोनर्स की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटीज़ की छूट के अलावा शाम को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी दी है। कमेटी का इजलास वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। NDMA ने शाम के लिए एशियाई खरोनोश फराहम करने की समरी ECC में पेश की थी। शाम में पाकिस्तान मिशन 4 करोड़ 42 लाख रुपए से 200 टन चावल और 200 टन आटा खरीदेगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए राशन अपना घर स्कीम मुतारिफ करवा दी है। अब बैरून मुल्क पाकिस्तानी दुनिया भर में कहीं से भी राशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पाकिस्तान में अपना घर खरीद सकते हैं या फाइनेंस करा सकते हैं। स्टेट बैंक के एलामिया के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानी घर बैठे डिजिटल तरीके से राशन अपना घर स्कीम में शामिल हो सकते हैं। राशन अपना घर स्कीम में टैक्स का निज़ाम सादा और हतमी है। राशन अपना घर स्कीम में जायदाद की फरोख्त की सूरत में रकम मुकम्मल तौर पर काबिल मुंतकली है और कोई भी पूछगछ नहीं होगी। राशन अपना घर स्कीम में फाइनेंसिंग पुरकशिश शरह मुनाफा पर है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मीडिया के हवाले से अवामी राय मुतासर हुई है। मीडिया की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। PTV न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमारा मोबाइल फ़ोन ही हमारा TV, अखबार और सोशल मीडिया है। हमारे जो कवानीन हैं वो बहुत पुराने हैं। ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन है उससे पहले के कवानीन है, तो ज़रूरी है कि इन कवानीन को मॉडर्न जो एक मीडिया है उसके मुताबिक बनाया जाए। 7 कवानीन हैं हमारे, उन 7 कवानीन को ख़त्म करके हम एक अथॉरिटी बना रहे हैं। एक ख़ास ग्रुप है, उन्होंने इसको इनिशिएट किया है और मुझे तो समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों ये अभी इनिशिएट किया है, जब हम उनको बार बार ये कह रहे हैं कि आप अपनी तजावीज़ हमें दें और हम उनको इनकॉर्पोरेट करने को तैयार हैं। सिर्फ 2 बातों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एक ये कि जो मीडिया वर्कर्स हैं उनका ये हक कि वो मीडिया ट्राइब्यूनल से रजू कर सकें, और दूसरा फेक न्यूज़। इन 2 बातों के अलावा जो भी चीज़ वो समझते हैं वो हम इनकॉर्पोरेट करने को तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के बाद अब PTV स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की भी तंजीमें नौ कर रहे हैं। अपने एक ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTV उज़्बेकिस्तान के इश्तराक से बाबर और गालिब पर तवील ड्रामा सीरीज़ बनाएगा। इस सिलसिले में इब्तदाई तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग वजारत इत्तलात और नशरियात ने कहा है कि ह्यूमन राइट्स वॉच की पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से रिपोर्ट मनगढ़ंत और गुमराहकुन है। बदकिस्मती से ह्यूमन राइट्स वॉच ने हुकूमत के मुतल्लिका दफ्तर से असल सूरत हाल मालूम करने की जहमत ही नहीं की। मुजवज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरती अमल जारी है। उन्होंने कहा कि मीडिया मालिकान, एडिटर्स, वर्किंग जर्नलिस्ट, एंकर पर्सनस, प्रेस क्लब समेत सिविल सोसाइटी के साथ मुशावरती इजलास मुनक्कद किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों, इत्तलात और नशरियात के मुश्तरका इजलास और वफाकी काबीना को भी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इन इक़दामात से इस बात की नफ़ी होती है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा बिल को खुफिया रखा गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने गलत और मनगढ़ंत मालूमात पर माफ़ी न मांगी तो कानूनी चाराजोई का भी हक रखते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि भारत CPEC के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस है। अफगानिस्तान में भारत को मुंह की खाना पड़ी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अफगान तालिबान ने वादा किया है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। दुनिया की कोई भी ताकत CPEC में रुकावट नहीं डाल सकती। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसब खान। वज़ीर आज़म इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन विजन के तहत इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। दुश्मन कुव्वतें बलोचिस्तान के हालात ख़राब करने के दर पे हैं, ताहम हमारी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अफगानिस्तान का अमन, सुकून, इस्तेहकाम और तरक्की पाकिस्तान का अमन, सुकून और तरक्की है। अफगानिस्तान का मसला अफगानियों का मसला है।
باہمی افہام و تفہیم سے اپنے معاملات حل کر رہے ہیں، اور جو دنیا کا ان سے مطالبہ تھا انہوں نے عام معافی دی ہے۔ مطالبہ تھا کہ اسکول اور کالج کھلے رہیں، وہ اسکول اور کالج کھلے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ان کا معاملہ طے ہے کہ نہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے کہیں استعمال ہوگی اور نہ پاکستان سے کسی ملک کے خلاف۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں پودا لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ شجرکاری مہم کا اہتمام NGO سیو دی چلڈرن اور CDA کے اشتراک سے کیا گیا تھا۔ کوشش یہ کہ کم از کم ہم 10 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ درخت اس ایک سال کے اندر لگائیں گے۔ شجرکاری مہم میں 15,000 پودے لگائے گئے، جس میں اسکول کے بچوں نے خصوصی دلچسپی لی۔ یہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، ہمارے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ ختم کرتے ہیں، ہماری ایٹماسفیئر کو کلین کرتے ہیں، ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ اس سے ہمیں فوڈ بھی ملتا ہے اور ہمیں شیلٹر بھی ملتا ہے، تو ہمیں اس لیے اس کو لگانا چاہیے۔ اسلام آباد میں چینی سفارتخانے کے قریب قبضہ مافیا سے جگہ واگزار کرا کے شجرکاری کی گئی۔ شجرکاری کا مقصد ماحولیات کو بہتر بنانا ہے۔ عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں کی طرف سے مسلسل جاری جعلی مقابلوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کی فضائی حکومت مسلم اکثریتی علاقے کو ایک مکمل ہندو ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے جعلی مقابلوں میں ایک ایک کر کے کشمیریوں کے قتل عام کی سامراجی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے غیر کشمیری ہندوؤں کو بڑے پیمانے پر آباد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیری خاص طور پر 5 اگست 2019 کے بعد سے سخت فوجی محاصرے میں نسلی عصبیت کے شکار افریقیوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ PDP کی صدر محبوبہ مفتی نے سری نگر میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کو بندوق کی نوک پر خاموش کروایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام پریشان ہے، صحافیوں کو ہراساں، گرفتار اور پاسپورٹ کے حصول سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ محبوبہ مفتی نے افسوس ظاہر کیا کہ ضلع بانڈی پورہ میں بھارتی فوج کی گاڑی کے ٹکر سے جاں بحق ہونے والی معمر خاتون کے دلخراش واقعے کی ویڈیو بنانے والے نوجوان پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کر دیا گیا، جس سے مقبوضہ علاقے میں ڈھائے جانے والے مظالم کی سنگینی کا پتہ چلتا ہے۔ بھارتی فوجی نے شہید نوجوان فیاض احمد کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی سے روکنے کے لیے ضلع کپواڑہ کے علاقے لولاپ میں لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی۔ بھارتی فوجی نے فیاض احمد کو دیگر 2 نوجوانوں کے ہمراہ گزشتہ روز سوپور میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا تھا۔ شہید نوجوان عمر قیوم کے اہل خانہ نے آج ان کی شہادت کی برسی پر پریس کالونی میں سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ عمر قیوم 2010 میں آج ہی کے روز پولیس کی حراست میں شہید ہو گئے تھے۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے مختلف شہروں کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو 44 اور سبی میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں ملک کے چند اہم شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر۔